नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And as a part of series, we are discussing about all facts relating to Right to Information Act. Several classes have already been uploaded. Some more to come. In between, one MCQ session we are going to take and discuss here. This is a new form of MCQ discussion. You will not find such type of format elsewhere. See what new things, what innovative things I have done just for better understanding. So let us discuss about only certain MCQs. And with this discussion of MCQ, we are going to revise the RTI Act also. So RTI Act, understanding of RTI Act through MCQs. This is the way. Let us see. So the first question is, which of the following statements are true as per section 4(1)(b)? Right? So section 4(1)(b) of the RTI Act mandates certain provisions to be done by the government departments, to be done by the public departments. So in that, section 4(1)(a), B, C, D, like that, several sections are there. 4(2) is also there. So here question is asking, which of the following statements are true as per section 4(1)(b)? Every public authority must ensure computerization of records. Every public authority must publish powers and duties of officers and employees. Every public authority must provide as information suo motu to the public. Every public authority must publish the budget allocated to each of its agencies. And every public authority must publish all relevant facts while formulating policies. So generally what happens, when MCQ questions are there, we find generally 4 options, A, B, C, D. Here you find 5 options. Why it is 5 options? Just to confuse it, because all are relevant and all RTI requires all this to be done. Here requirement of section is only about section 4(1)(b). So for section 4(1)(b), if you go through the section 4(1)(b), that provision makes that every public authority must publish the powers and duties of officers and employees, and every public authority must publish the budget allocated to each of its agencies. As far as this suo motu information, disclosure of suo motu information is concerned, it is related to section 4(2). It is related to section 4(2). Right? Next question. Which section of the RTI Act requires public authority to provide reasons for administrative or quasi-judicial decision to those who are affected? Right? So again, it's a matter of section understanding. Which section of the RTI Act requires public authority to provide reasons for administrative and quasi-judicial decisions? So जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल डिसीजन हो रहा है उनके रीजन भी प्रोवाइड करने हैं. ऐसा किस सेक्शन में लिखा है? Needless to go for the options, because option is not here correct. The correct option is 4(1)(d). The correct option is 4(1)(d). Such situation may also arise. Why I have opted this question? Such questions are generally asked by UPSC. The very purpose is just to touch any one of it and you are going to get negative marking. So UPSC एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर देना जितना ज़रूरी है,
किसी किसी क्वेश्चन को टच न करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसको टच किए और निगेटिव मार्किंग आ जाएगी। सो अगर हम श्योर हैं तो आंसर देंगे, और अगर हम श्योर नहीं हैं विल ट्राई टू अवॉइड इट। नहीं तो निगेटिव मार्किंग से क्या होता है, हमारा जो मेरिट में जो प्रोबेबिलिटी है वो डाउन हो जाता है। सो ऐसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, इफ़ यू आर नॉट श्योर प्लीज डोंट अटेंड इट, लीव इट। You are not expected to attend all 120 questions. Certain questions will be like this. If you touch it, bold out, catch out. So, it's one form of googly. We should avoid touching the answers if we are not 100% sure. So, for this question answer is 41D. Next question. Which of the following statement is not true about the RTI Act 2005? So क्वेश्चन पढ़ते समय हमें ये ध्यान देना है कि इसमें ट्रू पूछ रहे हैं कि नॉट ट्रू पूछ रहे हैं। आंसर ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत सिंसियरली और बहुत सोच समझ करके पढ़ना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू क्या क्या है? फाइट करप्शन, ये तो करप्शन फाइट करने के लिए है। इस्टाब्लिश ओनली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और देख लेते हैं क्या है। प्रोमोट्स ट्रांसपेरेंसी, यस ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए है। यहाँ पर लिख रहा है इस्टाब्लिश ओनली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। वाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज RTI एक्ट नॉट ओनली इस्टाब्लिशेस द State Information Commission, it establishes Central Information Commission also. So RTI Act establishes two agencies. For central government, Central Information Commission. For state government, State Information Commission. Here the statement is establishes only State Information Commission. This is wrong. So यहाँ पर ये B जो है रॉन्ग है, राइट। When did the president sign the RTI Act 2005? सो प्रेसिडेंट महोदय ने RTI Act 2005 पे कब साइन किया? 11th में 2005, 12th में 2005, 15th जून 2005, 12 अक्टूबर 2005। आंसर देने से पहले आप ये जान लीजिए, ये चारों डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल 4 डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज UPSC एग्जाम इज कंसर्न। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 11th May 2005 was the date when RTI bill passed in लोकसभा। तो 11th May को लोकसभा से RTI पास हुआ, 12th May को राज्यसभा से RTI बिल पास हुआ। सबसे पहले बिल होता है, बिल लोकसभा में राज्यसभा में रखा जाता है। जब प्रेसिडेंट का उस पर असेंट हो जाता है तो बिल कन्वर्टेड इनटू एक्ट, ये पार्लियामेंट्री प्रोविजन है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा ने RTI एक्ट कब पास किया? 11th May को। राज्यसभा ने RTI एक्ट कब पास किया? 12th May को। अब प्रेसिडेंट महोदय ने कब असेंट दिया? 15th जून को। ये देखिए, ये जो 15th जून है ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद से आता है 12th अक्टूबर। सो 12th October, why 12th October is important? 12th October is important because on the 12th October RTI came into force. RTI came into force on 12th October. 12th October से ये फोर्स में आ गया। इतना टाइम दिया गया था 15th जून से लेकर के 12th जून, ये मई से जून से 15 जून से लेकर के और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट 120 डेज टाइम दिया गया था इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसके बनाने के लिए।
क्या बेसिक रिक्वायरमेंट थी? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, PIO, APIO, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट थे जिसको करने में टाइम लगने थे, तो इसलिए 120 डेज टाइम दिया गया था और उसके बाद से 12 अक्टूबर को ये इम्प्लीमेंट हो गया. सो दिस क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट्स आर हैविंग 4 MCQs. फ्रॉम लोकसभा it got passed on 11th में, राज्यसभा passed it on 12th में. President assent, who was the president of India that time? Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was president of that time. So his assent was given on 15th June 2005 and it came into force on 12th October 2005. So after discussion of this one question, we are able to solve 5 MCQs. Lok Sabha, Rajya Sabha, President, who was the President and date of effective. I think you are gaining the information. It's a beautiful way of revision, so that you are not missing the information relating to that topic. Next. Which of the following word is not mentioned in preamble of RTI Act? Very important question. Pate of all examinations. They put this question, and this question has been repeatedly it has been coming, and people have been marking it wrongly also. They are getting negative marking because of their miscalculation. So which of the following एक word is not mentioned in preamble of RTI Act? RTI Act के preamble में, उद्देशिका में, इनमें से कौन सा शब्द मेंशन नहीं है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कंटेन करप्शन, नन ऑफ द एबव. इसका आंसर मैं यहाँ पे बता दूँ, इससे अच्छा ये होगा कि हम एक बार जो RTI का प्रीएम्बल है उसको देख लेते हैं. प्रीएम्बल में आखिर है क्या क्या चीज़ और लोग क्यों गलती कर देते हैं, आइए देखते हैं. सो ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड एक्ट नंबर इज 22 of 2005. Remote chances are there that act number may also be asked. Generally it is not asked. So act number is 22 of 2005. Got assent of president on 15th June 2005. Right? So this is the preamble. This is the preamble of the RTI Act. So we will go through each and every detail. An act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information. So this is the 15th June, okay. Secure access to the information and control of public authorities in order to promote transparency, accountability. So these two we have seen. I will show you. This is the transparency, this is the accountability. So generally what they do, persons, they understand that the transparency, accountability is mentioned here, content corruption is not mentioned here. That we will see here. Transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of Central Information Commission and State Information Commission, and for matters connected therewith or incidental thereto. So RTI Act का जो preamble है उसका फर्स्ट जो पैरा है, फर्स्ट पैरा में कह रहे हैं in order to promote transparency and accountability. So किस लिए पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है. तो इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू. इंसिडेंटल इसमें क्या हो जाएगा साहब? इसमें इंसिडेंटल हो जाएगा कि सिर्फ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के इस्टेब्लिश करने से काम नहीं चलेगा. आपको CPIO,
SPIO, APIO, DPIO इनको भी नॉमिनेट करना पड़ेगा, राइट। Whereas the Constitution of India has established democratic republic है, हमारा गणतांत्रिक लोकतंत्र है, and whereas democracy requires an informed citizen, डेमोक्रेसी को क्या चाहिए? इन्फॉर्म्ड सिटीजन चाहिए, और डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, which are vital to its functioning and also to contain corruption. So to contain corruption is given in para 3 of the preamble. So in para 3 of the preamble it mentions clearly and also contain corruption. So transparency, accountability, contain corruption. Let me see. Transparency, accountability, contain corruption. These all three have seen. Next we will see. And hold governments are their instrumentalities accountable to the governed. And whereas relation of information in actual practice is likely to conflict with other public interest. ये जो विधि के ज्ञाता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट करके ये जो RTI एक्ट बना रहे हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, पार्लियामेंट को ये पता है, पार्लियामेंट को ये पता है कि इंफॉर्मेशन को रिवील करना एक कन्फ्लिक्टिंग आइडिया है, कन्फ्लिक्ट विद अदर public interest including efficient operation of the government, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information. So बहुत से sensitive information गवर्नमेंट के पास होते हैं, डिपार्टमेंट के पास होते हैं, जिनको प्रिजर्व करना जरूरी होता है फॉर द सेक ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. सो अगर हम सारा इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं तो इट मे become a dangerous tool. So करना क्या है? And whereas it is necessary to harmonize this conflicting interest while preserving the paramountcy of the democratic ideal. So democratic ideal ये कहता है कि let the whole information be before the citizen. Let the whole functioning of the government department be disclosed in the public forum. ये डेमोक्रेसी की ज़रूरत है. और ऑफिशियल सेक्रेसी की क्या ज़रूरत है? कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन्ड. सो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग हो गए ना. इन दोनों कन्फ्लिक्टिंग के व्यू में इट इज़ नेसेसरी टू हार्मोनाइज दिस कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. कहीं ना कहीं हमें इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा. जो कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो रिवील भी ना हो, और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में पहुंच भी जाए, और इसके लिए RTI एक्ट पास करना जरूरी है. तो ये प्रीएम्बल में कहा जा रहा है, इट इज नेसेसरी टू हार्मोनाइज दिस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट while preserving the paramountcy of the democratic ideal. Now, therefore, it is expedient to provide for furnishing certain information to citizens who desires to have it. So, इसलिए कुछ इंफॉर्मेशन जो सिटीजन की को ज़रूरत है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है. एक और इम्पॉर्टेंट बात चीज़ है, be it enacted by Parliament in the 56th year of Republic of India as follows. So, in the 56th year of Republic में ये पास हो रहा है. So, इस प्रीएम्बल में क्या क्या MCQ क्रिएट हो सकते हैं? एक्ट नंबर है पास कब हुआ है? 2005 में. एक्ट नंबर जो है 22 ऑफ 2005 है. प्रेसिडेंट का एसेंट मिल रहा है 15 जून 2005 को. इसका पर्पस है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. इस पर्पस के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन,
स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाएगा और इनके अलावा इनसे रिलेटेड जितने भी बॉडी हैं उनको भी कंस्टिट्यूट किया जाएगा। डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट ये है कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट क्या है? इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और इससे क्या होगा? इससे टू कंटेन करप्शन होना चाहिए। सो करप्शन को कंट्रोल करना भी डेमोक्रेसी का काम है। तो जब इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाएंगे तो देयर इज सम कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। सो उस कन्फ्लिक्टिंग व्यूज में वेदर टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो है इट इज नेसेसरी टू हार्मोनाइज दिस कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। सो हम कुछ इस तरीके से एक एक्ट बनाएं जिससे इंफॉर्मेशन रिवील भी हो जाए, इन्फॉर्म्ड सिटीजन रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, करप्शन को कंटेन किया जा सके, और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनी रहे। उसके बीच का जो रास्ता है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। इट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट इन द 56th ईयर, 56वें साल, भारत के गणतंत्र होने के 56वें साल। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। सो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना और वहाँ से ये 56th ईयर में जाकर के ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पब्लिश हो रहा है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ आरटीआई एक्ट? आपने देखा ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी मेंशन्ड है, कंटेन करप्शन भी मेंशन्ड है, इसलिए नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से कौन कौन इंफॉर्मेशन करेक्ट है? इसमें कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आरटीआई से रिलेटेड है, इसलिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। लेट अस सी। द एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल कंट्री एक्सेप्ट JNK. So first statement says that it is not applicable to JNK. All adult citizen can file application under the act. So adult का definition आजकल क्या हो गया है? पहले it was 21, now it is 18 years. So 18 years से ज़्यादा ऊपर के जो citizen हैं they can file application under RTI Act. Okay. Public authority is responsible to give information to citizens. ठीक है. The information means any material in any form. साहब, इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हम चलिए नीचे से चलते हैं। Information means any material in any form. ठीक है। Public authority is responsible to give information to citizens. ठीक है। All adult citizens can file application under the RTI Act. ये सही नहीं है। द एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल कंट्री एक्सेप्ट JNK, ये भी सही नहीं है। वो भूल जाइए पुराना इंडिया, ये नया इंडिया है और नया इंडिया में JNK इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और 31 अक्टूबर 2019 से, आई रिपीट 31 अक्टूबर 2019 से all the statutes, all the laws which are prevalent in the country has been extended to JNK also. So जो कुछ भी रूल रेगुलेशन इंडिया में पहले थे या उसके बाद बनेंगे वे सब 31 अक्टूबर 2019 से JNK में भी एप्लीकेबल है। JNK का जो स्टेटस, स्पेशल स्टेटस 370 है, उसको समाप्त कर दिया गया, 35 है, ख़त्म कर दिया गया। सो इट इज़ एप्लीकेबल टू होल कंट्री इंक्लूडिंग JNK। यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑल एडल्ट सिटीजन कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर द एक्ट।
ये स्टेटमेंट थोड़ा देखने में सही लगता है नहीं, क्यों नहीं है, आइए देख लेते हैं। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर द RTI एक्ट आर द एप्लीकेंट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, द एप्लीकेंट शुड कंटेन द पार्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन sought, the evidence of the payment of application fee should be enclosed, the address of the applicant should be available for sending a reply. So यहाँ पर 4 information हमें शेयर करना है। The applicant should be a citizen of India. Here all adult citizen, here adult is not mentioned, only citizen of India. So any citizen of India can file application under RTI Act. Being adult is not compulsory, right? As far as this J&K is concerned, the word except the state of Jammu Kashmir omitted by Act 34 of 2019 and the 5th schedule with effect from 31st October 2019. Most important date, रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। 70 साल 75 साल से जो हम झेल रहे थे वो सब समाप्त हो गया। उनको हलवा पूरी खिलाते रहते थे और आतंकवादियों को पालते पोसते रहते थे, उनको उनकी खुशामदी करनी पड़ती थी, सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर that purpose all rules, regulations, all statutory laws which were prevalent in India has also been extended to J&K also. So J&K में RTI एक्ट भी लागू हो रहा है। J&K में SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो भी अब लागू हो रहा है। 2019 से पहले J&K में SC/ST का रिजर्वेशन नहीं मिलता था, OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता था, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है जम्मू कश्मीर में। आप समझिए कि देश के नायक आपके लिए क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत बड़ा पहचान है। ये आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फिर से यहाँ पर आ गया इनकरेक्ट सर्च करना है हमें। जैसे ये इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आए, ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओनली रिटन RTI एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल, नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट along with fee is to be mentioned, all up replies must be given within 30 days, no fees from those who belong to BPL। तो चलिए नीचे ऊपर से देख लेते हैं। ओनली रिटन RTI एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल। अब ऐसा है, वर्बल अगर RTI होगा, पूछ करके कोई RTI डालेगा और पूछ करके रिप्लाई दिया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड रखना मुश्किल है। तो रिटन एप्लीकेशन तो चाहिए। वो रिटन आपका हार्ड कॉपी में भी हो सकता है और वो रिटन आपका पोर्टल पर भी जाकर हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। बट ऑनलाइन भी रिटन ही होता है ना, अगर ईमेल लिखते हैं तो रिटन ही हुआ। तो इसलिए ये सही है, ओनली रिटन RTI एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, ये सही है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद फी इज टू बी मेंशन्ड। अब ऐसा है, नाम तो चाहिए और एड्रेस तो चाहिए। किस लिए चाहिए? नाम और पता नहीं रहेगा तो रिप्लाई कैसे भेजेंगे? मान लीजिए कि आप कौन हैं, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लीजिए, लेकिन किसके पास ये भेजा जाएगा? इसलिए नेम एंड एड्रेस चाहिए। और लॉ ने जो भी फी प्रिस्क्राइब्ड किया है उसको भी अटैच करना है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ऑल रिप्लाईज मस्ट बी गिवन विद इन 30 डेज, ये सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आइए पहले नीचे भी देख लेते हैं। नो फीस फ्रॉम दोज हु बिलोंग टू BPL, BPL वालों के लिए कोई फ़ी नहीं है। अब बात आई कि ऑल रिप्लाईज मस्ट बी गिवन विद इन 30 डेज। इन जनरल रिप्लाई टू बी फर्निश्ड विद इन 30 डेज, इट इज़ करेक्ट। replies to be furnished within 30 days, this is the correct, but not all replies. If it is related to life and liberty, within 48 hours.
If the application has been given to APIO plus 5 days, 35 days. If the information relates to third party plus 10 days, 40 days. If the information related to human right violation plus 15 days, 45 days. So all replies must be given within 30 days is incorrect. So this is the answer, right? Public authority must compile information in a format prescribed by the information seeker under the RTI Act 2005. Public authority must compile information in a format prescribed by the information seeker. इंफॉर्मेशन सीकर को जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए उसी फॉर्मेट में आपको पब्लिक अथॉरिटी को रिप्लाई देना चाहिए। ये सही है क्या? आरटीआई एक्ट में लिखा गया है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है दे विल नॉट क्रिएट एनी इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को एज इट इज शेयर कर देना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको कंपाइल करके उसको बना करके भेजना नॉट नेसेसरी। लेकिन कई जगहों पे मैंने देखा है कि इसका आंसर दिया है ट्रू, कई जगहों पे हमने इसका देखा है आंसर फॉल्स। तो अगर हर इंफॉर्मेशन को जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देना है तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अगर आपको जो मटेरियल है उसको रिकंस्टिट्यूट करना है तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन आपको रिकंस्टिट्यूट नहीं करना है तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, मैं इसको आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, अंडर सेक्शन 10 क्या है? अंडर सेक्शन 10 है, हम बताएंगे क्या है। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 द पब्लिक अथॉरिटी हैज provision to provide only requisite information available in document by masking the other parts of the document. So there is something called severability of information. सेक्शन 10 में सेवरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सेवरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि द पब्लिक अथॉरिटी हैज ए प्रोविजन टू प्रोवाइड ओनली रिक्विजिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट। रिक्विजिट इंफॉर्मेशन मीन्स आपको क्या चाहिए सिर्फ उसी को हम प्रोवाइड करेंगे। एक पेज में ऊपर वाला एक पेज में मान लीजिए कि 3 पैराग्राफ है, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड है तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को ही प्रोवाइड करेंगे, सेकेंड और थर्ड को मास्किंग कर देंगे, उसको ढक देंगे। सो ये इंफॉर्मेशन सही है, ऐसा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पब्लिक अथॉरिटी नीड्स टू वॉलंटरली डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन इवन इफ डिस्क्लोजेबल एंड फॉल्स अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। महाराज, no public authority needs to voluntarily disclose any information even if disclosable and falls under jurisdiction. So अपने आप तो इंफॉर्मेशन नहीं देना है, अपने आप इंफॉर्मेशन नहीं देना है, और वो भी जब फॉल्स अंडर जुरिसडिक्शन है तो इसको क्यों देंगे? अगर करेक्ट होगा तो इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने आप हमें नहीं देना है। तो इस तरीके से आपने देखा आरटीआई एक्ट का रिवीजन हमने किया मनली एंड मनली थ्रू दिस 10 MCQs. With the help of 10 MCQs, we did revision of certain parts of RTI Act. This series is expected to continue further. Please do like, subscribe, share, and yes, I have been waiting for your comment. So please drop your comments, please drop your views in the comment box. This is the SGKG Studies SGKG Studies. It's your own YouTube channel. These all materials are available here. And this is SGKG 2.22. And RTI classes are generally uploaded here. In addition to this, several videos are uploaded here.
Please keep on revising. Monthly revision is going to help you out. Monthly revision is going to help you out. First time reading, second time reading, third time reading, thereafter revision, 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 revision. Revision makes the person perfect. Revision eliminates the chances of making mistakes in the examination hall. If it does not eliminate, at least it reduces the probability of committing mistake in the examination hall. So please 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 keep on revising. ऐसा ना समझिए कि हमने 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, अब देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हर बार कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं रहता, हर बार ग्रैस्पिंग पावर एक जैसा नहीं रहता, और हर बार नहीं भूल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। हाँ, तो इस सबसे बचने के लिए प्रैक्टिस हमें करना है। देखिए यहाँ पर ये इसको टच करने से लाइक होता है, यहाँ पर कमेंट का बॉक्स होता है, ये सब्सक्राइब है, और ये बेल आइकन ऑन करना होता है। होपफुली आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और दोस्तों के बीच में शेयर भी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।